اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سسٹرز کا؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں کرے، آپ سیکھ سکیں انشاءاللہ۔ اچھا، ہم کلاس شروع کر لیتے ہیں کیونکہ مجھے 6:15 بجے کلاس ختم کرنی ہے اپنے ٹائم کے مطابق، اور ہم پڑھ لیتے ہیں جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ میں بک شیئر کرتی ہوں، لوگ جوائن کر لیں گے پھر آہستہ آہستہ۔ اچھا، لاسٹ کلاس میں ہم نے جو ہے کوشچن آنسرز نہیں کیے تھے نا، یہ والی تمرین اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے نہیں کی تھی، ہے نا؟ تو اس کو آج کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا پیسج کو پڑھ لیں تاکہ جو اوپر پیسج دیا ہوا چھوٹا سا ہے اس کو پڑھ لیں تاکہ جو ریویژن ہو جائے پھر آپ کوشچن آنسر آسانی سے کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ شیئر ہو گئی بک آپ کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا جی، کون پڑھے گا کہ اس کو پیسج کو؟ آ جائیں، کوئی سسٹر آ جائیں جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا یہ۔ میں پڑھ رہی ہوں۔ جی پڑھیے پڑھیے سسٹر۔ حاضر الدرس الثامن، حاضر رجول تاجر وذالک الرجول طبیبی۔ آگے پڑھیے۔ آدمی کا، تاجر کا، حاضر رجل تاجر ذالک الرجل طبیب۔ میں کسی اور سے پڑھوا لوں، پھر آپ سنیے، پھر بعد میں پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اسم التاجر محمود و اچھا اسم الطبیب سعید۔ ٹھیک ہے، آگے۔ حاذا البیت للتاجر وذالک البیت للطبیب۔ گڈ۔ بیت التاجر امام المسجد و بیت الطبیب خلف المدرسة۔ ٹھیک، آگے۔ لمن هذه السیارة ولمن تلك۔ هذه السيارة للطبيب وتلك تاجر۔ هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا۔ اب امریکہ، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا، امریکہ، ٹھیک ہے؟ امریکہ۔ اور یہ جو سسٹر یہ تھا نا، یہ امام تھا، امام نہیں تھا۔ دو ورڈ آتے ہیں نا، کہ امام آتا ہے امام المسجدی، اور ایک ہوتا ہے امام المسجدی، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہاں 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 جی۔ امام المسجدی کا مطلب ہوتا ہے کہ مسجد کا امام، ہے نا؟ اور امام المسجدی زبر کے ساتھ ہوتا ہے ان فرنٹ آف ماسک، مسجد کے سامنے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں۔ تو بیت التاجری، تاجر کا گھر، امام المسجدی، مسجد کے سامنے ہے، سامنے ہے جی۔ گھر کی بات ہو رہی ہے نا۔ اور بیت الطبیبی خلف المدرستی، اور ڈاکٹر کا گھر کہاں ہے؟ مدرسے کے پیچھے ہے۔ پیچھے ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اچھا، ایک سسٹر اور پڑھ لیں، پھر ہم کوشچن آنسر پہ چلتے ہیں، اور آپ غور سے سنیے گا سسٹر، ٹھیک ہے؟ چلیے، کوئی پڑھیں ایک آ کے؟ میں پڑھوں گا؟ جی جی پڑھیے۔ کون؟ طاہرہ۔ طاہرہ پڑھ لیں ایک دفعہ، ان کو اچھی طرح پڑھ لیں، پھر ہم کوشچن آنسر کسی اور کو دیتے ہیں۔ آپ لوگ ریڈی رہا کریں، سوچا نہ کریں۔ چلیے، سب کو پڑھنا ہے، سب کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ حاضر رجل تاجر وذالک الرجل طبیب۔ رجل سسٹر، جی جی، رجل۔ رجل طبیب۔ اسم التاجر محمود واسم طبیب سعید۔ حاذا البیت للتاجر وذالک البیت للطبیب۔ بیت التاجر امام المسجد وبیت الطبیب خلف المدرسة۔ لمن هذه السيارة ولمن تلك۔ هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر۔
هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. गुड. चलिए, छोटा सा पैसेज था, अब इसके क्वेश्चन आंसर है इंशाल्लाह ये हम करते हैं. कौन आएगा नेक्स्ट? फौजिया आप आएंगी? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. जी मैम, मैं पढ़िए. पढ़ती हूँ. अजिब अनिल अस्इलातिल आतियाती. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. मन हाजर रजुलु, ये आदमी कौन है? व मन जालिकर रजुलु, और वो आदमी कौन है? इसका जवाब देना है अभी. इसका हाजर रजुलु ताजिरुन, ऊपर वाले पैराग्राफ से देंगे ना मैम? हाँ जी, बिल्कुल उसी से देना. हाजर रजुलु ताजिरुन व जालिका रजुलु तबीबुन. तबीबन. नंबर 2, मस्मुत ताजिरी, ताजिर का नाम क्या है? इस्मुत ताजिरी महमूदुन, गुड ताजिर का नाम महमूद है. गुड गुड. नंबर 3, मस्मुत तबीबी, डॉक्टर का क्या नाम है? इस्मुत तबीबी सईदुन, डॉक्टर का नाम सईद है. मिन आइना सय्यारत तबीबी, डॉक्टर की गाड़ी कहाँ है? वहाँ मिन है या मन है? मिन मिन आईना है सिस्टर. मन जो होता है ना, ये मन है, ये मन है ऊपर वाला ना, और ये मिन है. मिन आईना. हाज़िहि सय्यारतु मिनल जाबानी, कहाँ से है? ये मिन आइना कहाँ से है, यानी जापान से है. सयारतु तबीबी मिनल सयारतु ताजिरी मिनल अमरीका. मिनल अमेरिका नहीं होगा, मिन अमेरिका. मिन अमरीका. अलिफ लाम नहीं आता अमेरिका पे, याबान पे आता है मिनल याबानी. ठीक है जी. अच्छा, अब आपने पता है क्या करना है? मिन आईना तो लाना ही नहीं है, वो तो क्वेश्चन क्लियर. माँ भी नहीं लाना, मन भी नहीं लाना. यहाँ से आंसर शुरू करना है आपने. हाजर रजुलु, और उसके बाद बताएंगे कि वो ताजिर है. ठीक है, और फिर बताएंगे तबीब है. वो जालिका रजुलु तबीबन, जो भी है. इस्मुत ताजिरी, यहाँ से आंसर शुरू करेंगे. इस्मुत तबीबी, ठीक है, उसका नाम बताना है. फिर सयारतु तबीबी मिनल याबानी. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इन दोनों की जगह हिया भी लिख सकते हैं. गाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो गाड़ी मुअन्नस होती है तो हिया भी लिख सकते हैं. हिया मिनल याबानी. ठीक है, और हिया मिन अमेरिका. तो अमेरिका पे अलिफ लाम नहीं लगता, जैसे पाकिस्तान पे भी नहीं लगता, तो वहां पे नहीं लगाना. अच्छा, नंबर 6 क्वेश्चन है. आईना आईना बैतु ताजिरी, ताजिर का घर कहाँ है? हुआ हुआ अमामल हुआ बैती अमामल मस्जिदी. बेटी की जरूरत नहीं है, हुआ कह दिया ना तो बस ठीक है. ये बैतु ताजिर दोनों की जगह आपने हुआ लगा दिया. ठीक है, दोनों की जगह हुआ लगा दिया, आसान काम कर लिया. हुआ अमामल, ताजिर का घर कहाँ है? अमामल मस्जिदी. अमामल मस्जिदी, मामा पे जबर आएगी. ठीक है, सारा सब पे जबर आ रही है. अमामा, सब पे जबर आ रही है. और इमाम होगा, नीचे जेर आएगी, तो फिर वो तो लीडर होगा, मस्जिद का इमाम होगा. तो घर जो है वो मुजक्कर होता है, तो हुआ आगे क्या लगाएंगे? हुआ अमामल मस्जिदी. अमामल मस्जिदी. वेरी गुड, अमामल मस्जिदी. ऐना बैतु तबीबी. हुआ खल्फल मदरसाती. मदरसाती. वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह. अब कौन ट्राई करेगा आके इन क्वेश्चन आंसर्स को? फिर आपने होमवर्क भी करना है ना. ये अभी आपने ये वाला नहीं किया होगा क्वेश्चन आंसर्स का, क्योंकि मैंने करवाया ही नहीं थी, मैंने होमवर्क में दिया ही नहीं था आपको. ये खुद से आए. राफिया, फरीहा. बाजी मैं पढ़ूं? जी जी पढ़िए. आंसर द फॉलोइंग, यहाँ से पढ़िए. तमारीन. तमारीन. अजिब अनिल अस्इलातिल आतियती. Answer the following questions. Man hadha rajulu
वमन ज़ालिकर रजुलु, ये आदमी कौन है और वो आदमी कौन है? आंसर हादा रजुलु ताजिरुन वज़ालिका रजुलु तबीबुन। हाज़र रजुलु, हाज़र रजुलु, ओके, ठीक है ना? जी जी, रजुलु, हाज़र रजुलु ताजिरुन वज़ालिका रजुलु तबीबुन। ये क्वेश्चन वर्ड नहीं लाना जवाब में, ठीक है, इसको जी, निकाल जी। देना। अच्छा, मस्मुत ताजिरी, मस्मुत ताजिरी, ताजिर का नाम क्या है? इस्मु ताजिरी महमूदुन। इस्मुत सही, ताजिरी इस्मु मिला के पढ़ते हैं, अरबी में ऐसे नहीं पढ़ इस्मुत सकते। इस्मुत ताजिरी, इस्मुत ताजिरी महमूदुन। ये कौन सा मुरक्कब है? इस्मुत ताजिरी ये मुरक्कब इजाफी, इजाफी है। और ये वाला हाज़र रजुलु हाँ, मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी है। वेरी गुड। आगे नंबर 3 पढ़े। मस्मुत तबीबी, डॉक्टर का नाम क्या है? इस्मुत तबीबी सईदुन। उसके बाद मिन आइना सय्यारतुत तबीबी, डॉक्टर की गाड़ी कहाँ है? कहाँ नहीं, मिन आइना कहाँ से है? कहाँ से है? आईना कहाँ होता है? अगर मिन कहाँ, ना होता मिन ना, से। अगर मिन ना होता ना तो डॉक्टर की गाड़ी कहाँ है, जी ठीक जी है ना। मिन आईना कहाँ से है, मिन का मतलब से होता है ना, जी जी। कहाँ से है। अब आप बताइए, सय्यारत तबीबी या ही, सय्यारतुत, इसकी जगह हिया भी सय्यारतुत, लगा सकते हैं ना। अच्छा हिया, सय्यारत तबीबी की जगह आप जमीर भी लगा सकते हैं, हिया। हिया मिनल याबानी, अगला, मिन आइना सय्यारतुत ताजिरी, ताजिर की गाड़ी कहाँ से है? हिया मिन अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका से है, वो अमेरिका से। से है, वो अमेरिका से जी है। जी। अच्छा, उसके बाद नंबर 6, आइना बैतुत ताजिरी, ताजिर का घर कहाँ है? एक मिनट, बैतुत ताजिरी इसकी जगह जमीर भी लगा सकते हैं, हुआ, हुआ, क्योंकि हाँ, बैत मुजक्कर होता है ना, गाड़ी तो मुअन्नस थी जी ना, तो हमने हिया हिया लगाया दोनों जगह। जी। यहाँ पे बैत बैत आ रहा है, तो अब आप हुआ हुआ ही लगाएंगे। हुआ अमामल मस्जिदी, आइना बैतुत तबीबी, डॉक्टर का घर कहाँ है? हुआ खल्फल मदरसती। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेल डन, एक्सीलेंट। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, ये नेक्स्ट वाला तो मैंने पिछली दफा पढ़ा दिया था आपको, ये नहीं पढ़ेंगे आज हम इसकी भी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था कि इसको लिखना है, इसका तर्जुमा करना है, और ये वाला जो है आज हम करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो ये वाली एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज आज का होमवर्क है, नंबर 3 एंड नंबर 1। नंबर 2 जो है वो आपने कर ली होगी, या फिर ऑप्शनल है ये अभी, ठीक है। अब आप कौन करेंगे ये वाली एक्सरसाइज? आके नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी। 3 लोगों के हाथ रेज्ड हैं। अच्छा, राफिया आएंगी, ठीक है, राफिया आप आइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राफिया बोल रही है जी, पढ़िए। इक़रल मिसाल लाती महबल जुमलुल आतियतु मिसलहु। रीड द एक्सप्लेन, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, पढ़े इंग्लिश में पढ़ लें। रीड द एक्सप्लेन, देन चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन इट्स पैटर्न। ये जो है ना आपका एग्जाम्पल है, रीड द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल क्या होती है? मिसाल, मिसाल। अरबी में मिसाल कहते हैं, उर्दू में मिसाल कहते हैं, एग्जाम्पल। हाज़ा किताबुन
हाज़ा किताबु लि मुहम्मदिन। हाज़ल हाज़ल किताब। कि- हाज़ल किताबु लि मुहम्मदिन। अच्छा, तो हाजा किताबुन क्या है? क्या इसको मुरक्कब इशारी बोल सकते हैं? जी, मुरक्कब इशारी है ये वाला भी मुरक्कब इशारी है, और ये वाला, जी। ये भी मुरक्कब इशारी है। जी, मुरक्कब इशारी बाजी है। कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस। प्लीज प्लीज कंप्लीट सेंटेंस, इनको बोलने दे ताकि मुझे पता चले कितना आता है इनको। अच्छा, यहाँ कंप्लीट पे सेंटेंस तो ये भी हाज़ा किताबुन भी कंप्लीट सेंटेंस है। हाँ, ये कंप्लीट सेंटेंस है, हाजा किताबुन। जी। इसका तर्जुमा क्या होगा? हाजा किताबुन, ये किताब है। ये किताब है। हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है। हाजी सैयारतुन, ये सब कंप्लीट सेंटेंस है। बट हाजल किताबू जो है, इसका तर्जुमा क्या होगा? हाजल किताबू का, ये किताब, ये किताब, तो ये कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं है ना? ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। हाँ, इसके आगे हमें क्या कुछ लगाना पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? तो वो क्या है? ली मोहम्मदिन, ये किताब मोहम्मद की है। अब ये कंप्लीट हो गया। जी। हाँ, है का तर्जुमा आ गया ना, तो ये कंप्लीट हो गया। हाजल किताबु ली मोहम्मदिन, ये किताब किसकी है? ली मोहम्मदिन, मोहम्मद की है। मोहम्मद की। ली का मतलब लिए होता है ना, मोहम्मद के लिए, या मोहम्मद की है, या फॉर मोहम्मद है, बिलोंग्स टू मोहम्मद है, कुछ भी कह लें, ठीक है? तो हाजल किताबु इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, और हाजा किताबुन इज अ कंप्लीट सेंटेंस। आप देखें, दोनों में डिफरेंस देख लें आप। ये मार्फा है और ये नकिरा है, और ये मार्फा है और ये भी मार्फा है। सही है? ये दोनों मार्फा हैं, जी। ठीक है? ये दोनों मार्फा हैं। दोनों मार्फा होंगे तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। एक मार्फा और एक नकरा होगा तो कंप्लीट होगा, ठीक है? जी। अब ये देखें, ये मार्फा है, ये नकरा है, तनवीन आ रही है, नकरा है, ये मार्फा है। इसी तरह ये है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, मार्फा प्लस नकरा। बट यहाँ पे ये भी मार्फा है, ये भी, इस पे भी अलिफ लाम आ रही है, ये भी मार्फा है, तो ये आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस बनता है, फ्रेज बनता है। मुरक्कब तो बन गया, बट कंप्लीट मुरक्कब नहीं है इसकी तरह। ये भी मुरक्कब है, ये भी दो अल्फाज है, मुरक्कब बन रहा है, बट ये कंप्लीट है और ये कंप्लीट नहीं है, इसको फ्रेज कहेंगे। ये मुरक्कबे इशारी है और ये जुमला है, जुमला सेंटेंस, और ये मुरक्कब इशारी। अब ली मोहम्मद लगाएंगे तो ये भी कंप्लीट सेंटेंस जुमला बन जाएगा। अभी आपने क्या करना है, उन्होंने आपको ये कंप्लीट सेंटेंस दिए हैं, आपने इसको किस में चेंज करना है? इस सेंटेंस को मुरक्कब इशारी में चेंज करके और आगे ये लगा के कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। करिए, कोशिश करें। जी, हाजा तबीबुन, हाजल तबीबु मिनल हिंदी। हाजा तबीबुन का क्या मीनिंग है? ये डॉक्टर है। ये डॉक्टर है। हाजल तबीबु का क्या मानी है? ये डॉक्टर हिंद ये, से है। हाँ, इंडिया से। मिनल हिंदी आगे लगाएंगे तो कंप्लीट होगा, वरना हाजल तबीबु तो कंप्लीट नहीं है। ये डॉक्टर 100 बार भी आप कहेंगे ना, ये डॉक्टर, कंप्लीट नहीं होगा, वो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। ये डॉक्टर, ये डॉक्टर, ये डॉक्टर। लेकिन अगर आप ये डॉक्टर कह के आके मिनल हिंदी लगा देते हैं, कंप्लीट हो जाता। ये डॉक्टर कहाँ से है? इंडिया से है, हिंद से। नंबर 2 कीजिए। हाजिही सैयारतुन, ये गाड़ी है। तो ये- हाजिही सैयारतुन भी मुरक्कब इशारी है ना? नहीं, ये मुरक्कब इशारी नहीं है, ये मुब्तदा है और ये खबर है, ये जुमला इसमें है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। देखें सिस्टर, मुरक्कब इशारी जो होता है वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। अच्छा, बट ये कंप्लीट मतलब सेंटेंस है। इसमें इशारा आ रहा है ना, हाजिही। हाँ, वो कोई बात नहीं है, लेकिन आगे नकिरा आ रहा है ना जी। इसको आप अभी मुरक्कब इशारी में चेंज कर रही हैं। जब अलिफ लाम लगाती है ना यहाँ पे, हाजी हिज सैयारतु लगाती हैं, जब आप अलिफ लाम लगाती हैं तब वो मुरक्कब इशारी बनता है। जी। देखें आप, आप दोनों में फर्क देखें ना, इसमें अलिफ लाम नहीं आ रहा, ठीक है? जी। तो ये मुरक्कब इशारी नहीं है। जी। इसमें जिसमें अलिफ लाम आता है वो मुरक्कब इशारी होता है। तो आप यहाँ पे अलिफ लाम ही लगा रही है ना, हाजत तबीबू कर रही है ना, आप अलिफ लाम लगा रही हैं तबीब पे। तबीब पे आप क्या कर रही हैं? अलिफ लाम लगा रही हैं।
تو हाज़त तबीबू, तबीबू आप करेंगी और ये आपका मुरक्कब शारी अलिफ लाम के साथ बनेगा। ये मुरक्कब शारी नहीं है, इसमें आप अलिफ लाम लगाएंगी तब ये मुरक्कब शारी बनेगा। सिर्फ इशारा होना काफी नहीं है, ये मुब्तदा है और ये खबर है उसकी आगे। यहाँ पे कोई मुब्तदा खबर नहीं है, यहाँ पे ये पूरा मुब्तदा बन रहा है और ये खबर बन रही है, मुरक्कब जारी आगे। तो थोड़ा सा इसको फर्क को देखें, मुरक्कब शारी में अलिफ लाम आता है और जिसमें अलिफ लाम नहीं आता वो मुरक्कब शारी नहीं होता। क्या बोला है मैंने, दोबारा बोले? जिसमें अलिफ लाम आता है वो मुरक्कब इशारी होता है और जिसमें अलिफ लाम नहीं आता वो मुरक्कब इशारी नहीं होता। तो इसमें से इन दोनों में से कौन सा मुरक्कब इशारी है, ये वाला या ये वाला? हाजल किताबु लि मुहम्मदिन, हाजल किताबु जो है वो मुरक्कब इशारी है। और ये वाला हाजा किताबुन एक जुमला है, पूरा जुमला है। वेरी गुड, मुब्तदा और खबर। सही है। अभी आप यही तो बना रही हैं, मुरक्कब जुमले से आप मुरक्कब इशारी बना रही हैं। जी। और क्या कर रही हैं, जुमले से मुरक्कब इशारी बनाने के लिए क्या कर रही हैं आप? बीच में अलिफ लाम ला रही हैं, अलिफ लाम मारिफा बना दिया, मारफा बना रही है, नकरा को मारफा बना रही है, बस। अच्छा आगे नंबर 3 ये पढ़िए। हाज़िही सय्यारतुन, हाज़िही लिस्सय्यारतु लिलमुदीरी, हाज़िही सय्यारतु, हाज़ी, हाँ उसको जोड़ दिया करें, पहले हाज़ी ही नहीं पढ़ा करें, हाज़ी हिस्सय्यार, हाँ हाज़ी हिस्सय्यारतु लिलमुदीरी। गुड, चलिए आगे करें। ज़ालिका वलदुन, ज़ालिकल वलदु इब्नुल मुदर्रिसी। गुड गुड, ये तिल्का साअतुन, तिल्का साअतु मिन सवीसरा, सुविसरा, सुवीसरा। हाज़ा कलमुन, हाज़ल कलमु लिअब्बासिन। ठीक है। जब अलिफ लाम लगाएंगी ना, तनवीन जो होगी वो गिर जाएगी, एक पेश में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना? हाज़ल कलमु हो जाएगा। हाज़ल कलमु लिअब्बासिन। ज़ालिका रजुलुन, ज़ालिका रजुलु मुअज़्ज़िन, ज़ालिका रजुलु मुअज़्ज़िनुन, मुअज़्ज़िनुन। इसको नहीं छेड़ना, इसको कुछ नहीं करना, इसको वैसे ही रहने देना, ठीक है? जिन्होंने सही लिखा हुआ है सब कुछ, इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने इसको क्या करना है, मुरक्कब इशारी में चेंज करना है, बीच में अलिफ लाम लगाना है। जब अलिफ लाम लगाएंगी तो तनवीन तो नहीं आएगी ना, फिर जी हाँ, गिर जाएगी। अब अगले को करें। हाज़िही बैदतुन, हाज़िहिल बैदतु कबीरतुन। हाज़िही बैदतुन का मतलब क्या है? ये अंडा है, एग है। हाज़िहिल बैतु, ये अंडा बड़ा है, बड़ा है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ मुअन्नस था तो यहाँ भी मुअन्नस है। चलिए हाज़ा मिंदीलुन, हाज़ल मिंदीलो वसिखुन। वसिखुन क्या मीनिंग है? हाज़ा मिंदीलुन, ये मिंदील रुमाल है। हाँ, ये रुमाल है, ये रुमाल साफ गंदा है, गंदा है। वसिखुन गंदा है, ठीक है ना? उसके बाद अगला करें, ये नंबर रुमाल 9। गंदा है। हाज़िही हकीबतुन, हाज़िहिल हकीबतु लिल मुदर्रिसी, लिल मुदर्रिसी, ठीक है ना? लिल मुदर्रिसी। अच्छा हाज़िही हकीबत उनका मीनिंग बताएं। हकीबतुन, ये बैग, हकीबा बैग। हाज़िही हकीबतुन, ये बैग नहीं होगा, ये बैग है, ये बेड है। इसमें है भी शरीर लगाना है। जी, शरीर मैंने भी बेड होता है ना जी, किसका? शरीरुन, शरीरुन बेड होता है, ये बैग है, ये आपका अच्छा, जो पर्स बैग, होता है। हाँ जी, हाँ जी, और जो आपका होता है ना पर्स जो होता है, जी, तो उसको कहते हैं हकीबा, ठीक है? बैग जो ऑफिस लेके जाते हैं, जी, तो मदर्स का भी एक बैग होता है, तो ये हकीबा है। और हाज़िही हकीबत उनका मतलब है ये बैग है, इसमें है आएगा।
بٹ حاضی الحقیبۃ کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ بیگ. یہ بیگ للمدرسی، مدرس کا للمدرس. ٹیچر، تو مدرس. ٹیچر کا. چلیں اور کوئی کرنا چاہے گا پریکٹس اس کی؟ جلدی 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 جلدی. اچھا جی، کسی اور نے بھی ہاتھ ریز کیا ہوا ہے؟ طاہرہ بھی ہیں، عبداللہ. طاہرہ آپ آ جائیں. طاہرہ نے ابھی پڑھا نہیں؟ پڑھا طاہرہ نے تو. فوزیہ آپ نے پڑھا؟ جی پڑھا. ایسے میں پڑھ لوں؟ نہیں نہیں، ابھی میں اختر بیگم کو بلاؤں گی. ٹھیک ہے، اختر بیگم آپ آئیں گی، پڑھیں گی؟ آسان ہے بالکل. کاشفہ بھی ہیں، نگت بھی ہیں. فریحہ بھی ہیں. اتنا اچھا موقع ہے، میم نام کال کر رہی ہیں، پڑھیں سب لوگ پڑھیں. اس لیے پھر میں نہیں کہتی نا، پھر دوبارہ کلاس میں نہیں آتے. سیرش ہیں، سیرش آپ پڑھیں گی؟ میڈم میں پڑھوں؟ جی آپ کا کیا نام ہے؟ قدسیہ. قدسیہ، ماشاء اللہ. چلیے آئیے پڑھیے. اچھا ہم نے یہ والا کرنا ہے نا، یہی والا. یہ تھوڑی ڈفرینٹ مشکل ایکسرسائز ہے. مشکل تو نہیں ہے لیکن ہوم ورک میں ہے، تو اس لیے میں چاہتی ایک دفعہ آپ اور کر لیں. تو یہ جو ابھی پڑھی ہے سسٹر نے وہی پڑھنی ہے؟ ہاں یہ وہی پڑھنی ہے. آپ اس کو مثال کو پہلے پڑھیں اور پھر آپ کیجیے نمبر 1 نمبر 2. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. یہ جو پہلا ہے، یہ جو ہے مبتدا خبر بن کے یہ جملہ ہے پورا. جی. ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. اور آگے پھر ہم نے اس کو مرکب اشاری بنایا ہے الف لام لگا کے، ھذا الکتاب لمحمد. تو اسی طرح باقی سارے کرنے ہیں. نمبر جی 1 جو بالکل اس طرح ہے کرنے ہیں. تو ھذا الکتاب کیا بن جائے گا اس میں جملے میں؟ یہاں پہ یہ مرکب اشاری ہے. مرکب اشاری بن کے کیا بنے گا؟ پوزیشن کیا مبتدا ہوگی؟ بن جائے. مبتدا بن یہ جائے ہاں گا. جی یہاں پہ صرف ھذا مبتدا بن رہا تھا. ہاں جی ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ پورا مرکب اشاری مبتدا بنے گا. اور مبتدا خبر بن کیا جائے. بنے گی؟ مرکب جاری. یہ مرکب جاری ہے، کل یہ آپ کی. ماجد کل آپ نے بتایا تھا کہ جو مبتدا یہ ہوتا ہے، یہ مرکب اشاری جو ہے ہمیشہ خبر بن کے کبھی نہیں آتا. اور ہاں اسی یہ طرح جار جو ہے جی وہ کبھی مبتدا نہیں بنتا. تو یہ جی 3 ایگزامپل پہلی جو ہیں وہ یہی ہیں، اسی کے متعلق ہیں. بالکل. دوسرا ہے حاضت طبیب من الہندی، یہ ڈاکٹر ہند سے ہے. حاضح السیارۃ للمدیری، یہ گاڑی ہیڈ ماسٹر کی ہے. اس کے بعد ذالک الولد ابن المدرسی، یہ لڑکا مدرس کا یعنی ٹیچر کا بیٹا ہے، استاد کا بیٹا ہے. تلک الساعۃ من السویسرا، یہ گاڑی سوئٹزرلینڈ سے ہے. ھذا القلم من لعباس، یہ قلم یہ پین عباس کا ہے. ذالک الرجل مؤذن، وہ لڑکا مؤذن ہے. وہ آدمی وہ آدمی مؤذن ہے. حاضح البیضۃ کبیرۃ، یہ انڈا بڑا ہے. ھذا المندیل وسخ، یہ رومال گندا ہے. ھذہ الحقیبۃ للمدرس، یہ بیگ ٹیچر استاد کا ہے. استاد کا ہے، مدرس سے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اس میں آپ نے یہاں پر آپ کو خبر دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ خبر ہے. یہ سارا جتنا آپ کو دیا ہوا نا خبر ہے. آپ نے یہاں پہ مبتدا بنانا ہے. تو یہاں پر مبتدا صرف ذالکا بن رہا تھا، یہاں پہ ذالک الولد پورا مبتدا بنے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو ذالکا مبتدا تھا، ولد خطی. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. مرکب اشاری بن کے مبتدا بن گیا اور جار مجرور بن کے خبر بن گئی. بالکل. اور یہاں پہ صرف اسم اشارہ مبتدا بن رہا ہے. ہاں صرف اسم اس کو اشارہ مرکب اشاری نہیں کہنا. یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. یہ مرکب اشاری نہیں بن رہا، یہ کمپلیٹ جملہ بن رہا ہے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. اور آپ مائک پہ آیا کریں، بالکل نہ گھبرایا کریں. میں اس لیے تو لائیو کلاس لیتے ہیں اور آپ لوگ آئیں، ورنہ تو ریکارڈنگ ڈال دوں گی میں کر کے، تو آپ وہاں سن لیں. لائیو کلاس کا یہی فائدہ ہے کہ آپ کی ججٹ نکلے گی، آپ پائیں گے، مجھے اندازہ ہوگا آپ کو کتنا آتا ہے. جو نہیں آتا اس کا کریکشن ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, تو ضرور مائک لیا کریں. ہم نیکسٹ سسٹر کون لیں گی, یہ والا ہم کر رہے ہیں, یہ بالکل ہی آسان ہے, اس کو ہم کرتے ہیں. ایک دفعہ آپ ہی کر لیں آ کے, ہینڈ ریز نہیں ہے میرے خیال میں, تو اس میں طاہرہ آپ آ کے اس کو کر لیں, تو پھر ہم دوسرے کو کسی کو بلاتے ہیں. ایک دفعہ آپ کر لیں تاکہ سب کچھ. لمن یہ کرنا ہے, یہی جو لمن حاضل کتاب, طاہرہ یہ عبداللہ, ایگزامپل. آپ کا کیا نام ہے سسٹر؟ کتیا. آپ نے کبھی کیا ہے نا؟ اچھا کوئی اور کرے گی, ٹھیک ہے. ہاں کوئی اور کر لیتی ہیں, پھر آپ کر لینا, ٹھیک ہے. طاہرہ آپ آئیں گی, فارغ ہیں؟ جی باجی بالکل. ہاں ٹھیک ہے, آج اقرا المثال مثال اللتی مثال الآتی ثم کون اسئلتن اسئلتن و اجویتن مثلہ. Read the following example. اجویبتن مثلہ. میں بھی بالکل ایسی the تھی جیسے following. آپ لوگ ہیں نا, بالکل یہ نارمل ہے, ٹھیک ہے. جب ہم پڑھتے ہیں, اور آپ ماشاءاللہ مجھ سے بھی اچھے ہیں, تو پھر اتنا اچھا موقع ملا آپ کو پڑھنے کا, تو اس کو پڑھیے, مائک پہ آئیے. اور جو دیکھیں ابھی کون ہے, وہ پتہ کیا ہوتا ہے, جب ہم مائک پہ آتے ہیں تھوڑی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے نا, تو اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ پھر کریکشن بھی ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے خود ہی یہاں پہ کریکشن کیا, مجھے بہت اچھا لگا. آپ نے آتی بولا, یہ آتی ہے, جیسے اردو میں آتی بولتے ہیں نا, اسی طرح یہ آتی ہے. اور یہاں پر آپ نے یہ سکون ہے یہاں پر اقرا پہ, اور یہاں بھی سکون ہے, تو زیر دے کے ملانا ہے. اقرا المثال, پڑھیے مثال کو, اللہ تی آنے والی جو نیچے آ رہی ہیں فالوئنگ, سما پھر کون بنائیے, بنائیے کون بنانا ہوتا ہے نا, اسئلتن سوال, اینڈ جواب, مثلہ مانند اس کے, اس کی مانند, ہاں اس کے پیٹرن پہ, ٹھیک ہے نا. اب آپ مثال دیکھ لیں اور پھر کر لیں. ٹھیک ہے, پہلے مثال دیکھ لیتے ہیں. لمن حاضل کتابو, لمن حاضل کتابو, اس کا کیا ہوگا, وہ جو ہے وہ یہ کتاب حاضل کتابو کیا ہے, حاضل کتابو کیا ہے, حاضل کتابو تو یہ اس میں وہ ہو گیا نا مرکب اشاری, مرکب اشاری ہے, تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا, حاضل کتابی یہ کتاب, حاضل کتابو یہ کتاب, یہ کتاب لمن, لمن کس کے لیے ہے, کس کے لیے ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس طرح نہیں لکھ سکتے تھے, من کو شروع میں لانا ضروری تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ کوشچن بنانا ہے نا. تو اگر حاضل کتابو لمن لکھتے تو کوشچن نہ بنتا, تو کوشچن بنانے کے لیے پہلے اس کو لائیں من کو, اور پھر یہ لائیں. اب اس کا آپ نے جواب دینا ہے نا, تو اب کیا ہے, حاضل کتابو لی محمدن, حاضل کتابو لی محمدن. ہاں, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے حاضل کتابو محمدن, اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا, یہ کتاب محمد ہے, محمد ہے, لی محمدن, کیونکہ لی ہے حرف جر, تو اس لیے محمدن ہو گیا نا یہاں پہ آ کے. ہاں, تو یہاں پہ سب مرکب جاری بن کے خبر بن رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور مرکب اشاری بن کے مبتدا بن رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا. اگر حاضہ کتاب ان کہیں گے, الف لام ہٹا دیں گے, چلیں اس میں فوکس جو ہے وہ اسی پورشن پر ہے, مرکب جاری پر, ٹھیک ہے نا, کیونکہ عباسن ہے تو اس میں حرف جر لگا کے آگے, اور عباسن ہو جائے گا, عباسن جو ہے. آپ اس کو کریں پہلے نمبر 1 کو, یہ والا مفتاح, اس کو سوال کو بنائیں, پہلے سوال بنائیں. لمن حاضہ حاضل, حاضل مفتاحن, مفتاحو, مفتاحو, لمن حاضہ مفتاح, جب الف لام لگائیں گی نا تو پھر ہن تو نہیں ہوگا نا, ہو ہوگا نا. لمن حاضل مفتاحو, اب کون سا, یہ والا, اچھا اس کا جواب دینا ہے نا. اچھا, اسی کا جواب دینا ہے, صحیح. تو یہ ہوگا حاضہ حاضل مفتاح لی عباسن, لی عباسن, ٹھیک ہے. لی لگانے سے کیا ہو جائے گا, کسرہ آ جائے گا, کیونکہ حروف جارہ ہے نا, لی حروف جارہ میں سے, تو اگر 2 پیش ہوں گے تو 2 کسرہ آئیں گے. 2 پیش ہی ہے نا باجی اس کے اوپر, ہاں 2 پیش ہیں, یہ سب پہ 2 پیش آ رہے ہیں, جہاں پہ 2 پیش آئیں گے
अलिफ लाम नहीं आएगा तो 2 ही पेश लगेंगे, ठीक है। अगर ना भी लगे हो तो आपने लगाने हैं, ठीक है, अगर अलिफ लाम ना लगाओ, ठीक है। तो अब पहले आपने क्या लिखा, मैं 1 मिनट आपको बता देती हूँ। हाँ, आपने यहाँ पे लिखा लिमन, लिमन, हाजिहिल, हाजा है ना, क्योंकि ये मुज़क्कर है तो हाजी नहीं आएगा, ठीक है। हाजल मिफ्ताहु, मिफ्ताहु, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब आपने जब जवाब लिखना है तो उसमें आपने लिमन को नहीं लाना, यहाँ से आंसर शुरू होगा, ठीक है। हाजल मिफ्ताहु ली अब्बासिन, जब ली लगाएंगे तो ये इस तरह से ली अब्बासिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने करना है होमवर्क में। आखिर वाले जो है वो तनवीन चेंज हो जाएगी। हाँ, दोनों फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं यहाँ पे। ये वाला भी क्वेश्चन भी बनाना है और आंसर भी लिखना है सब में। अच्छा, नंबर 2 करें। अब ये क्या आ गया, कार है। लिमन, लिमन हाजिहिल सय्यारतु, हाजिहिस सय्यारतु, ठीक है। और आगे सय्यारतु, हाजिहिस सय्यारतु ली अलीयन, ली अलीयन, 2 ज़ेर जरूर लगाने हैं, ठीक है, उसको नहीं भूलना। यहाँ पर भी 2 ज़ेर, सही है। चलिए आगे, नंबर 3। ये क्या है, लिमन हाजल हाजिहिल बकरतुन, लिमन हाजिहिल, तू देखा, तुम निकलता है ना अभी तक, प्रैक्टिस करें ये, वरना तो सारी जिंदगी निकलता रहेगा। जब टीचर बन जाएंगी तभी निकलेगा, तो इसको ख्याल रखें थोड़ा, इसलिए मैं कहती शुरू से पकड़ ले। तो लिमन हाजिहिल बकरतु, बकरतु, हाँ। अब क्या है, हाजिहिल बकरतु, हाजिहिल बकरतु, लिल मुदीरी, लिल मुदीरी, बकरतु हो जाएगा, एक पेश आएगा क्योंकि अलिफ लाम लगाया है। मुरक्कब इशारी बनाने के लिए अलिफ लाम जरूरी है। अच्छा, तो अब यहाँ लिल मुदीरी, एक लाम तो पहले से है ना, एक लाम लगा देंगे हम और आखिर में कसरा अलिफ को गिरा देंगे, ये शक्ल बन जाएगी। ली को जब किसी अलिफ लाम वाले से मिलाते हैं ना तो फिर क्या होता है, अलिफ गिर जाता है और लाम को उसके साथ ही जोड़ देते हैं। जैसे देखें अल्लाह होता है ना, है ना, जब हम ली लगाते हैं तो क्या होता है, अलिफ गिर जाता है और वो क्या बन जाता है, इस तरह से लिल्लाही बन जाता है, लिल्लाही हो जाता है इस तरह से। देखा आपने, ये इसमें 2 वर्ड है, ये एक ही वर्ड है और इसमें 2 वर्ड है, एक ली भी है और एक अल्लाह भी है आगे, क्योंकि वो बीच में से अलिफ गिर गया। तो बिल्कुल आपने क्या करना है, अलिफ को गिरा देना है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, लिल फलाही, जब अलिफ लाम आएगा। लेकिन जहां पर अलिफ लाम नहीं आया वहां पर आपने सिंपली ली लगा देना, सिंपली ली लगाना है, बिल्कुल। हाँ, तो अब आपने अगला करना है, हाजिहिल बकरतु लिल मुदीरी हो गया। अच्छा, नंबर 4 करेंगे। अच्छा, ये भी मुअन्नस है तो ये होगा लिमन हाजिहिल हकीबतु, लिमन हाजिहिल हकीबतु नहीं, अभी ये भी है ना। अच्छा, ये तो मैंने ऊपर लिख दिया ना, ये मैंने ऊपर लिख दिया, लिल मुदीरी, इसको मुझे नीचे लाना है यहाँ पे, और यहाँ पे गाय जो है वो किसान के लिए, अल-फलाह किसे कहते हैं, किसान को, लिल फलाही लाना है यहाँ पे, लिल फलाही, बिल्कुल जी। ये सैयारा जो है यहाँ पे आना था, ये थोड़ा सा गलत किया हुआ है। सैयारा यहाँ पे आना है लिल मुदीरी, और चाबी जो है वो किसके लिए, अली के लिए, इस तरह से ये आपने सही करके लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कोई जो है ना मिसिंग है यहाँ पर, आप ये तो इसके लिए है ना, हाजल किताबू। अच्छा, किताबू के सामने उन्होंने कलम दे दिया ना, तो पहले सबसे पहले ये शुरू वाला जो है ना, मिसिंग था, पेन वाला नहीं किया, अच्छा, नंबर 1 में, हाँ, इसका आप जो क्वेश्चन बनाएंगे ना तो लिमन हाजल कलमु बनाएंगे, ये वाली पिक्चर पहले है ना, तो यहाँ पर हाजल मिफ्ताहु की बजाय आप क्या करेंगे, हाजल कलमु करेंगे और फिर हाजल कलमु ली अब्बासिन करेंगे, ठीक है। और मिफ्ताहुन यहाँ आएगा, ठीक है, और सयारतुन यहाँ आएगा नंबर 3 पे, और नंबर 4 पे क्या आएगा, ये आपकी गाय आएगी,
हाज़िहिल बकरतु लिल फलाह, सोच के करना है थोड़ा सा। और उसके बाद अभी नंबर 5 सही हो गया यहाँ पे। चलिए क्या आएगा यहाँ पे? लिमन हाज़िहिल हकीबतु, हाज़िहिल हकीबतु लिल मुदर्रिसी, लिल मुदर्रिसी, ये बैग टीचर का है। अल मुदर्रिसु मेल टीचर होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हकीबा जो है वो आपका मुअन्नस है, तो हाज़िही है। आगे करें कुर्सी वाला नंबर 6। लिमन, हाजा और हाज़िही, हाज़ल कुर्सी, कुर्सी, हाज़ल कुर्सीयु, कुर्सीयु आएगा, सही है। लिमन हाज़ल कुर्सीयु, क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, ठीक है। अब इसका जवाब दें, यहाँ से शुरू करें। हाज़ल कुर्सीयु अम्मार की है, हाज़ल कुर्सीयु ली अम्मारिन, ली अम्मारिन, ठीक है। अच्छा, 2 ज़ेर नहीं लगाने बोलने, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन 7। लिमन हाज़ल दीकू, हाज़त दीकू, हाज़त दीकू शमसी है ना दाल, हाज़त दीकू तशदीद आएगी, ठीक है। यहाँ पे कमरी था, हाज़ल कुर्सी, इसलिए तशदीद नहीं आई काफ पे। हाज़ल कुर्सी लाम पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पर अब लाम नहीं पढ़ा जाएगा, दाल पढ़ा जाएगा। लिमन हाज़त दीकू, लिमन हाज़त दीकू, हाज़त दीकू लिबिंतुल अद्दीकू, ठीक है। इस तरह से आप लिबिंतुल फल्लाही, ली बिंतुल फल्लाही, आपने बिंत पे ली लगाना है, ठीक है। इस पे आप नहीं लगाना, इस पे लगा हुआ है ना, पहले से लगा हुआ है, उसको लगाने की जरूरत नहीं है, ना हटाने की जरूरत है अलिफ को। यहाँ पर आप सिंपली ली लगा देंगे, ली बिंतुल फल्लाही। और ये होमवर्क मस्ट करना है आपने, क्योंकि आगे मुश्किल एक्सरसाइजेज आएंगी, तो ये नहीं करेंगे तो आगे वाली भी नहीं आएंगी। अच्छा, अभी थोड़े से सेंटेंस रह गए हैं, आ जाएं, जो खुद से आप आ जाएं, ये कर लें नंबर 10 तक। नंबर 10 पे, 8 से, नंबर 8 से शुरू करें और 10 तक कर लें। लिमन हाज़िहिस सातु, हाज़िहिस सातु इब्नुल मुदीरी, लिब्नुल मुदीरी, हाज़िहिस सातु लिब्नुल मुदीरी, ठीक है ना। लिमन हाज़िहिल मस्जिदु, अच्छा एक मिनट, लिबनी होगा ना, लिबनी होगा ना, जब ली लगाएंगे तो इब्नु क्या बन जाएगा, जेर ले लेगा ना, लिब्नु, हाँ जेर, ली हर्फ जर है, तो लिबनिल मुदीरी यूं हो जाएगा, ठीक है। लिबनिल मुदीरी, लिबनुल मुदीरी नहीं रहेगा, ली लग गया ना, जैसे वहां पर ऊपर वाले में, यहाँ पे जब हमने ली लगाया तो ली बिन तिल फलाही हो जाएगा। यहाँ पे जब आप ली लगाएंगे ना लिए के लिए, तो ली बिन तिल फलाही हो जाएगा। इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगाना, ये मुदाफ है, सिंपली ली लगाना है बस। ली बिन तिल फलाही, बिन तुल फलाही मुरक्कब इजाफी है, इसके ऊपर आप अलिफ लाम नहीं लगा सकते, सिंपली ली लगाएंगे और जेर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें भी ऐसे ही है, हाजी हिस्सा अतु लिब्निल मुदीरी। अच्छा, इसको करिए। लिमन हाज़िहिल मस्जिदु, हाज़िहिल मस्जिदु लित्तबीबी, 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 अब अलिफ जो है वो आपका कहाँ जाएगा, एक सेकेंड, लित्तबीबी, टीचर मस्जिद के साथ हाजी ही तो नहीं आएगा। हाँ मस्जिद के साथ हाज़ आएगा, सॉरी मैं ध्यान और जगह था। तो यहाँ पर आपका दोबारा से बनाइए नंबर 9, लिमन, लिमन हाज़ल मस्जिदी, हाज़ल मस्जिदु,
हाजल मस्जिदु, मस्जिद मस्जिद हाजा मस्जिद हाजा हाजल जेर नहीं देता। मस्जिद है या बैतुल है? राइट। हाँ सॉरी, हाजल बैत। मैडम ये ऊपर वो बना हुआ है जो मस्जिद का निशान, नहीं नहीं, मस्जिद का नहीं ये है, वो घर घर के। ऊपर मस्जिद का निशान नहीं बना हुआ? नहीं नहीं, मस्जिद नहीं इस तरह होती, घर ही है, बैत है, हाजल बैत, ठीक है ना। हाजल बैतु हम्म, हाजल बैतु लित्तबीबी। हाजल बैतु यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हाजल बैतु। अच्छा, हाजा के बाद हाजल आपने बैतु बैती नहीं करना, हाजल लित्तबीबी। बैतु ही होगा, हाजल बैतु। बैतु हाँ, हाँ, हाजल बैतु बैतु लित्तबीबी। अब इस लित्तबीबी अलिफ को आपने क्या बना देना, लित्तबीबी, इस तरह बना देना, लित्तबीबी। जेर देखें, हाँ लित्तबीबी। चलिए ठीक है, आगे नंबर 10। मैम ये आगे तो फोटो एक किस चीज की है ना, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये वाला रुमाल है ना। अच्छा रुमाल है। हम्म, लिमन हाजल मिन दीलू, हाँ हाजल मिन दीलू लित्तालिबी। लित्तालिबी, लित्तालिबी अलिफ को गायब कर देंगे, ठीक है, लित्तालिबी हो जाएगा। यहाँ पे अलिफ को गायब नहीं करना, जब अलिफ लाम आएगा तब अलिफ को गायब करना है। यहाँ पे तो अलिफ लाम नहीं है ना, इब्न आ रहा है, इब्नु, तो लिब्नी हो जाएगा। हाँ, लिब्नु। हर चीज में बहुत सारी चीजें सीखने को है। अच्छा, अब ये क्या चीज है, इसका जुमला बनाएं भला। ये एक घर है, ये एक घर है, हाजा बैतुन, हाजा बैतुन, ये एक घर है। और अब बनाएं, ये घर नया है, हाजल बैतु जदीदुन। हाजल बैतु, ये आपका मुब्तदा, ये खबर, ये घर है, ये एक घर है, ठीक है ना। अब ये मुब्तदा है और ये खबर है, ठीक है। ऐसे जुमले की इब्तिदा हो रही है, ये मुब्तदा है और ये उस घर के बारे, हाजा क्या, ये खबर दी जा रही है कि घर है। अच्छा, अब क्या है, जब मैं तर्जुमा चेंज करूंगी, ये घर नया है, अब बनाए हाजल बैतु जदीदुन, हाजल बैतु, ये घर हो जाएगा, घर की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ हाजल बैतु, ये घर नया है। आगे क्या लिखूं, जदीदुन, 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 ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ ये घर मोहम्मद का है तो क्या कहेंगे, हाजल बैतु, बैतुल मोहम्मदी। नहीं, बैतुल मोहम्मदी नहीं होगा। ये हाजल बैतु को अलग कर दे, इसको नहीं मोहम्मद, मिलाना आगे, इसको मोहम्मद। आगे नहीं मिलाना। क्या लिखेंगे, ली मोहम्मदिन। ली मोहम्मदिन, मोहम्मदिन, ली ली मोहम्मदिन। मोहम्मदिन। अगर मैं वो कहती तो हूँ मुरक्कब ये इजाफी घर बनता है। मुदीर का है, हाजल बैतु, ये घर मुदीर का है, बैतु लिमुदीर, लिल लिमुदीर। मुदीरी, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा, लिल मुदीरी। तो यहाँ पे जो जेर लगाना है ना, हर्फ जार के बाद यहाँ पे डबल जेर आएगी, ली मोहम्मदिन, और यहाँ पर अलिफ लाम था, अल मुदीरु था, लिल मुदीरी हुआ तो एक जेर आएगी। तो इन चीजों का ख्याल रखते हुए आपने होमवर्क करना है, ठीक है। अगर कोई चीज समझ नहीं आती, रिकॉर्डिंग दोबारा सुने, अपनी ग्रुप इंचार्ज को बोले ये समझ नहीं आई, इसको समझाएं, इसको मैंने कैसे करना है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, वो आपकी हेल्प के लिए ना, सही है। तो आपकी ग्रुप इंचार्ज, आप किसी ना किसी ग्रुप में तो होंगे ना, आपकी ग्रुप इंचार्ज भी होंगे। तो अच्छा जी, अब ये हो गया, इसमें मोर प्रैक्टिस की जरूरत है तो बता दें, एक दफा और करा देती हूँ। कौन करना चाहेगा वॉलेंटियर? पता है इसका भी अजर होता है, आप पूरी क्लास सुनती है, फिर उनका भी वो सीखते हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसी तरह आपको भी फिर अजर मिलता है। तो जैसे अभी करके गई है ना सिस्टर तायरा, तो सबको फायदा हुआ ना, तो अब दूसरों के लिए आसान हो जाएगा थोड़ा। सही है, आ जाए, कौन आएगा? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की आवाज खुद ही सुन के ना, बुलाए बगैर। चलिए करना है, नंबर 1 करेंगे जी। नंबर 1 कलम है, ठीक है, ये नंबर 1 है, इसको करना। लिमन हाजल किताब खलमु। नाम क्या है आपका सिस्टर? फरीहा है। फरीहा, अच्छा माशाल्लाह। चलिए पढ़िए, लिमन हाजल कलमु। नहीं, यहाँ पर क्या लिमन लिखेंगे? हाजल, हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे ना, लिमन हाजल कलमु।
जी लिमन हाजल खलमुना ये तो क्वेश्चन होगा ना। हाजल हाँ जी जी हाजल कलमु ली अब्बासिन ली अब्बासिन, वेरी गुड। जी लिमन हाजल मिफ्ताहु हाजिहिल आएगा ना बच्चे हाजिहिल मिफ्ताहु हाजी ही अली आएगा, नहीं चाबी उर्दू में मुन्नस हाज होती है, अरबी में मुजक्कर होती है। जी जी लिमन हाजल मिफ्ताहु लिमन हाजल मिफ्ताहु हाजल मिफ्ताहु अलियन ली अलीयन, लियब्बा ली ठीक है ना। अलियन हाँ, जी तो अगर आप ली नहीं लगाएंगी तो उसका तर्जुमा होगा ये चाबी अली है। ली जी का मतलब लिए होता है ना, अली के लिए है, तो ली लगाना पड़ेगा, वरना ये चाबी अली है बन जाएगा तर्जुमा। समझ रही है? चल नंबर 3। जी जी लिमन हाजिहिस सय्यारतु हाजिहिल लिल मुदीरी हाजी हिस सयारतु, हाजी हाजिहिस हिस सय्यारतु सयारतु लिल मुदीरी। लिल मुदीरी जी हाजिहिल बकरतु लिमन हाजी हिल लिमन बकरतु, हाजिहिल बकरतु हाजिहिल बकरतुल फल्लाहु इसको नहीं जोड़ना, ये अलग है। हाजी बकरतु हिल फल्लाहु बकरतु अलग है, ये मुब्तदा है, उसको जोड़ने की जी जरूरत जी नहीं है। उसके खबर के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। लिल फलाह ही अलग पढ़ेंगे। जी हाजिहिल बकरतु फल्लाहु लिल फलाह, लिल फल्लाहु ली जरूरी लगाना है ना, अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये गाय किसान लिए है, लिए किसान है बन जाएंगे। जी जी तो आपने क्या करना है, लिल फलाही किसान की है। अच्छा जी यहाँ पे बैग का क्या होगा? लिमन हाजिहिल हकीबतु म्यूट करें सिस्टर, लिमन प्लीज म्यूट हाजिहिल करें हकीबतु सिस्टर, कोई म्यूट करें, किसी का खुला माइक। अच्छा आगे हाजिहिल लिल हाजी हिल हकीबतु हाजिहिल हकीबतु अल मुदर्रिसी लिल मुदरिस। जब तक आप ली नहीं लगाएंगे आप जेर नहीं दे सकते ना, हरफ जर लगाएंगे ली तो फिर आपका क्या आएगा, लिल मुदरिसी। माशाल्लाह, चलिए इसके साथ ली जरूर लगाना है, सबके साथ ली लगाना है, जितने भी आ रहे हैं सबके साथ ली लगाना है। ली लगाने से मुरक्कब जारी बन जाएगा और खबर बन जाएगी। पिछली वाली एक्सरसाइज में आपको ली खुद उन्होंने लगा के दिया था, इसमें आपने खुद ली लगाना है। अच्छा आगे क्या है, लिमन लिमन हाजल कुर्सियु हाजिहिल कुर्सियु लिल अम्मारिन ली हाजल कुर्सी, अम्मारिन कुर्सी कुर्सी मुजक्कर है ना, तो हाजा लगा हुआ है, तो हाजल कुर्सियु ली ली अम्मारिन। अम्मारिन हाँ, हाजल कुर्सियु ली रोन को अम्मारिन रिन में चेंज करेंगे, ठीक है ना, रोन है ना तो जी रिन में चेंज करेंगे। अच्छा जी, अब इसका बनाइए, दी का आ गया, क्वेश्चन बनाइए। लिमन हाजा दीकुन हाजत दीकू, हाजा दीकु देखिए अलिफ लाम लग जाए तो एक पेश आता है। मैं लिखती जी हूँ यहाँ पे लिमन लिमन, हाजा लिमन दीकु हाजत दीकू, हाजा लिखेंगे और फिर आगे अद्दीक लिखेंगे और फिर दोनों को मिला के पढ़ेंगे। जब मुरक्कब बनता है तो उनको लाजम मिला के पढ़ना पड़ता है। अद्दीकू, हाजत दीकू हो जाएगा यहाँ पे, दीकू। लिमन हाजा दीकु ठीक है, चले आगे। यहाँ पर क्या होगा, हाजा दीकु लिल फल्लाही ली बिन तिल फलाई, ली बिन्तिल फल्लाही इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, हाजत दीकू ये मुर्गा, ये मुर्गा फला फला किसान की, किसान की बेटी का है। हाँ बेटी का है। लिब लिब, इसको लिबन बोलेंगे, ली भी कह सकते हैं, लिबन
इसको ली बिन्तिल फलाई पढ़ लें, कोई बात नहीं अगर आपको मुश्किल लग रहा है। बिन्तिल फलाही। हाँ ठीक। हाँ बिन्तिल फला, हाँ बिन्तिल इसमें कोई अलिफ तो आ नहीं रहा ना जिसको हमने वो करना है, तो हम इसको ली बिन्तिल फलाई पढ़ेंगे, ली बिन्तिल फलाई। तो ये एक्सरसाइज भी आपने करनी है। अच्छा, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करना चाहते हैं, एक कोई लोग एक प्रैक्टिस कर लें इस लेसन की, ताकि अच्छी तरह होमवर्क करें और अपने ग्रुप इंचार्जेस को फिर भेजें। ठीक है, उनसे मैं रिपोर्ट लेती हूँ कैसा आ रहा है होमवर्क। तो अच्छी रिपोर्ट, आपकी फीडबैक अच्छी है और सब कोशिश किया करें कि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले पूरा होमवर्क कंप्लीट करें, क्योंकि आगे मुश्किल आएगी। तो फिर मुश्किल आसान तभी होती है जब पहले मुश्किल उठाई जाए। आसानी के बाद मुश्किल और बढ़ जाती है, मुश्किल के बाद आसानी होती है, आसानी के बाद मुश्किल होती है। तो अभी आप मुश्किल उठाएंगे थोड़ी, तो फिर आगे आसानी है इंशाल्लाह। इन्ना मलूसरी युसरा, सही है ना? एक्सक्यूज मी मैम। ये तो अल्लाह का फरमान है ना। जी बोलिए। जी मैम, ये तो आपने 7 नंबर में हाजत दी को, दाल के ऊपर आपने शद लिखी थी, तो यहाँ पे हम हाजल दी को नहीं करेंगे, लाम के ऊपर, लाम के साथ नहीं जा को मिलाएंगे। दाल को देखिए, हाजल दी को तो पढ़ने ही बुरा लग रहा है ना। ओके ठीक। हाजत दी को दाल से मिलाना है। दाल जो है ना वो आपका हुरूफे शमसी है। मैंने आपको एक जुमला बताया था ना, हक का खौफ अजब गम है, उसमें दाल आती है। हक का खौफ अजब गम है, नहीं आती है। ओके, इससे बंद करना है। अच्छा, हक का खौफ अजब गम है। अब इसमें देखें दाल आ रहा है कोई? नो मैम, नहीं आ रहा। हाँ, तो फिर दाल फिर आपका शमसी है, तो शमसी लेटर जो होता है उस पर तशदीद आती है। तो ये जुमला इसलिए बताया था कि आप उसको लिखने में आपको आसानी हो, आप फौरन फैसला कर लें कि अच्छा ये तो शमसी है, इस पे तो तशदीद डालनी है मैंने। और अगर इसमें से कोई लेटर आ रहा है तो उस पर आपने तशदीद नहीं डालनी, उसको लाम पढ़ा जाएगा उसका। ठीक है इंशाल्लाह। तो अच्छा, इसमें किसी को प्रैक्टिस करनी, एक दफा और कर सकते हैं, आके पढ़ सकते हैं। कोई सिस्टर आना चाहेंगी? काशिफा, काशिफा ही है ना, जबीन, सैरिश भी हैं, असरा बेगम। हाँ जी, बताइए अपना नाम। सैरिश, माशाल्लाह। एक बार मुश्किल होती है, फिर उसके बाद मुश्किल नहीं होती कभी। और ये नॉर्मल है, जो मुश्किल होना है ये भी नॉर्मल है, क्योंकि माइक से सब थोड़ा सा घबराते हैं। और ज्यादा हम घबराते इसलिए कि कोई मिस्टेक आए तो हमारी शायद इंसल्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ सब सीखने वाले हैं, मैं खुद भी सीखने वाली हूँ, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख के जाती हूँ। ठीक है, चलिए। आप सबसे पहले आपने पेन को करना है, क्वेश्चन बनाए यहाँ पे। जी मैम जी। इसको देख के क्वेश्चन बनाइए। जी ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिमन हाज़ल कलमु, हाज़ल कलमु लि अब्बासिन। गुड। यहाँ पे नेक्स्ट, लिमन हाज़ल मिफ्ताहु, हाज़ल मिफ्ताहु लि अलीजिन। ली अलीजिन। नेक्स्ट नंबर 3, लिमन हाज़िहि सय्यारतु, हाज़िहि सय्यारतु लिल मुदीरी। गुड, लिल मुदीरी। लिखने का तरीका आता है ना आपको? नेक्स्ट नंबर, हाँ, नंबर 4। नंबर 4, लिमन हाज़िहिल बकरतु, हाज़िहिल बकरतु लिल फल्लाही। गुड गुड। लिमन हाज़िहिल हक़ीबतु, हाज़िहिल हक़ीबतु लिल मुदर्रिसु। गुड। नंबर 6, लिमन हाज़ल कुर्सिय्यु, हाज़ल कुर्सिय्यु लि अम्मारिन। कुर्सी जो होती है मुज़क्कर होती है तो हाज़ा ही आएगा। ठीक है। हकीबा जो है ये मुन्नस है, ये मुन्नस है तो हाज़ी ही लगाएंगे, ये भी मुन्नस है, हाज़ी ही लगाएंगे। अच्छा, रूस्टर क्या है, मुज़क्कर है मुन्नस है? मुज़क्कर है मैम, हाज़ा आएगा। नंबर 7, लिमन हाज़द दीकु,
हाज़ा दीकु ली बिन्तिल फल्लाही। ली बिन्तिल फल्लाही, ली की वजह से बिन के नीचे जेर आएगी, फला के नीचे तो पहले ही लगी है। ये जेर क्यों लगी है? जी मैम, ये क्यों लगी है? यहाँ पे जेर पहले से लगी हुई है। जी मैम शुरू में अलिफ लाम आ गया ना। हाँ, उसकी वजह से तो एक जेर आ रही है ना, लेकिन जेर आई क्यों है? पेश क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे वो बनना था ना मुरक्कब जारी, तो उन्होंने इसलिए पहले से ही लगा दिया। नहीं, बिल्कुल मुरक्कब इजाफी है। इजाफी। ये मुरक्कब हाँ, इजाफी है ना, उसमें मुदाफ इलैह मजरूर ही होता है ना। ये बिन जी, जी। ये मुदाफ की वजह से जेर लगी हुई है। इसके नीचे जो जेर आएगी ना, वो ली की वजह से आएगी, वो आपने चेंज करनी है। ये वाली जो जेर जो पहले से लगी, ये तो मुरक्कब इजाफी मुदाफ इलैह की जेर है। ये मुदाफ इलैह बन रहा है ना, बिन्तुल फल्लाई मुरक्कब इजाफी बन रहा है, तो उसके नीचे तो आनी चाहिए थी, यहाँ पर पेश आनी थी, एक पेश आनी थी, अलिफ लाम नहीं आना था, और यहाँ पे आपका जेर आया। तो जितना गौर फिक्र करेंगे ना, इतना जल्दी सीखेंगे, इतना जल्दी सीखेंगे। तो यहाँ पर ये ग्रामर है ही। अच्छा, पेश क्यों आ रही है, जेर क्यों आ रही है, यही ग्रामर है। जिस दिन आपको आइडिया हो गया ना कि अच्छा यहाँ पे दो जेर क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे एक जेर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ अलिफ लाम नहीं है, यहाँ पे अलिफ लाम है इसलिए एक जेर आ रहा है। बट जेर आ क्यों रहा है? पेश भी तो आ सकता था, अल-फलाहू भी तो हो सकता था। जेर क्यों आया? क्योंकि मुदाफ इलैह बन रहा है, और ये जो है ये मुदाफ है। और इसके नीचे बाद में जेर क्यों आया? हमने क्यों जेर लगाई? क्यों जेर लगाई हमने? स्टार्ट में ली लगा दी ना, स्टार्ट में लाम लगा दी। हाँ, लाम लगाना। हरफे जब भी पीछे से कोई आएगा ना, तो उसने हरकत चेंज करनी है, ठीक है। अगर मबनी होगा तो उसकी चेंज नहीं होगी। अमेरिका, कनाडा, ये वाला होगा, अलिफ आखिर में आएगा, तब भी चेंज नहीं होगी। मिन कनाडा, अब मिन जो है हरफे जर है, लेकिन कनाडा के नीचे जेर नहीं आएगी, अमेरिका के नीचे नहीं आएगी, क्योंकि आखिर में क्या आ गया? अलिफ आ गया। जब अलिफ आता है तो फिर आपका नहीं आता। इसी तरह ली मूसा, अब मूसा के नीचे आप जेर लगाएंगे, अलिफ आ गया, नहीं आएगा। आप कैसे लगाएंगे? ना पेश लगा सकते हैं, ना जेर, ना जबर, कुछ भी नहीं लगा सकते, आखिर में अलिफ आ गया। इसी तरह अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जितनी कंट्री है इनमें आप नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे लगा सकते हैं, वहां तो जरूर लगाना है। चलें, ठीक, अभी थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। माशाल्लाह आपने अच्छा किया सैरिश, थैंक यू। आप आएं, जज़ाकल्लाह खैर। मुझे बहुत तसल्ली हो जाती है कि हाँ मेरे स्टूडेंट जो है वो सही सीख रहे हैं। मुझे तो आपसे इसी तरह फीडबैक मिलता है ना कि आप आएं और पढ़ें। अच्छा, ये भी आपने नहीं किया, इसको कर लें सैरिश, कंप्लीट कर दें, कुछ सेंटेंसेस रहते कर दें। नंबर 8 लिमन हाज़िहि साअतु, हाज़िहि साअतु लिब्नुल मुदीरी, लिब्नुल मुदीरी। नंबर 9 लिमन हाज़ल बैतु, हाज़ल बैतु लित्तबीबी, लित्तबीबी, ठीक है। अलिफ जो है ना बीच में से गिर ही जाएगा, अलिफ को लाम बना दे, सही है। और यहाँ पर अलिफ रहेगा, यहाँ पे अलिफ रहेगा बट पढ़ा नहीं जाएगा। यहाँ पर इसके साथ ली लगा दें, ये अलिफ रहेगा बट पढ़ा नहीं जाएगा, लिब पढ़ेंगे, लिब्नुल मुदीरी। चलें, ये क्या है? नंबर 10 लिमन हाज़ल मिंदीलु, हाज़ल मिंदीलु लित्तालिबी, लित्तालिबी। अच्छा, अब इसका सेंटेंस बनाएं घर का। एक सेंटेंस आप 2 वर्ड से बनाएं और एक सेंटेंस आप 3 वर्ड से बनाएं, मुरक्कब इशारी लगा के बनाएं। हाज़ा बैतुन, गुड। ये एक घर है। हाज़ल बैतु लिल मुदीरी या लिल मुहम्मदिन, वेरी गुड, ये घर मुदीर का है, ठीक है ना। 4 वर्ड हो गए। हाज़ल, वो मुब्तदा क्या बन गया? हाज़ल बैतु, और लिल मुदीरी आपका मुरक्कब जारी बन के खबर बन गई। अच्छा, इसको बनाइए, पहले इसका बनाइए, इसको चलिए आप पूरा ही बना दें। ये गाय किसकी है? गाय हाज़िहिल बकरतु ली बिन्तिल फल्लाही, फलाह की बेटी की है, किस किसान की बेटी की है। देखिए कितना फायदा होता है, जो वर्ड है उनके मीनिंग्स भी रिपीट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है।
यकीन जाने रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं रखा, रिकॉर्डिंग सिर्फ मजबूरी में देते हैं जो लोग जॉब्स करते हैं, जो घर पे ही नहीं है तो होते इस वक्त। अगर आप घर पे हैं तो जरूर क्लास में आए, वहाँ यहाँ पे आप सवाल भी कर सकते हैं, अगर आपकी कोई मिस्टेक हो तो वो भी निकल जाती है आपके पढ़ने से, और आपको पढ़ने की प्रैक्टिस भी होती है। जो बोलना होता है ना वो अलग बात होता है, जो सुनना होता है वो अलग बात होती है। आप रिकॉर्डिंग सुनते हैं, होमवर्क करके भेज देते हैं, उसका कोई इतना बोलेंगे तो पढ़ना आएगा आपको, कल पढ़ा भी सकेंगे। फिर तो आज अच्छे स्टूडेंट बनेंगे तो कल अच्छे टीचर बनेंगे। आप लोगों ने ही करना है सब कुछ, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह ताला कहीं ना कहीं अल्लाह ताला आपके लिए बंदोबस्त करेगा। आपकी फैमिलीज हैं जो वो अल्लाह का काम है, ठीक है ना, वो अल्लाह का काम है। बाजी जी जी बाजी बोलिए। अल्लाह को लिल्ला बना के एक दफा दिखा दें, अल्लाह को लिल्ला कैसे बनाया था। हाँ जी, आप देखें अल्लाह वो में अलिफ होता है ना, ये है, सही है। अब आपने क्या करना है, इस अलिफ को ही लाम बना दे, लिल्ला बन जाएगा, ठीक है ना। ये लिल्ला हो गया, तो लिल्ला ही होता है, ली की वजह से यहाँ पे जेर आएगी। इसी तरह सब में यही रूल होगा कि जहाँ पे अलिफ होगा वो लाम के साथ अल मिफ्ताह, तो वो लाम बन जाएगा अलिफ, सिर्फ लाम के लिए। देखें बाकी अल्लाह के साथ अगर आप मिन लगाएंगे ना तो क्या होगा, अल्लाह के साथ मिन लगाएंगे तब तो कोई फर्क नहीं, फिर तो अली मिनल्लाह होगा ना। हाँ फिर हाँ, इसको सबको ज़ेर दे के मिलाते हैं, मिन को जबर दे के मिलाते हैं, सबको ज़ेर दे के मिलाएंगे, बट मिन जो है वो स्पेशल है, उसको जबर दे के मिलानी है। तो मिनल्लाहु होगा या मिनल्लाही होगा? मिनल्लाही। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो इसको आपने जब इसको बनाना है ना लिल्लाही, तो बस इस तरह से आपने ये लिखना है। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह कैसे लिखा हुआ है, सूरत अल फातिहा में देखें कैसे लिखा हुआ है। इसमें दो वर्ड है, इसमें दो वर्ड हैं, ली भी है और अल्लाह भी है, इसलिए तो जेर आ रही है। अगर सिर्फ अल्लाह हो तो अल्लाहू होता है, लेकिन जब मिन लग जाता है, ली लग जाता है, तो फिर लिल्लाही हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है तो कर ले। अच्छा, ये वाला जब देखें, ठीक है ठीक है। अच्छा, कोई ये पढ़ेगा आगे पार्ट 8 में, एक्सक्यूज मी मैम, जी जो पार्ट 8 है उसमें लिब्नी किस तरह लिखेंगे, क्योंकि आपने कहा अलिफ भी आएगा और लाम भी आएगा, ये वाला बता इस तरह लिख देना, अलिफ लाम सब लाम पीछे लिख देना, क्योंकि आप इसको यूं नहीं लिख सकती, ये लबन बन जाएगा, ये नहीं लिखना, ठीक है। ठीक, आपने अलिफ को लिखना है लेकिन पढ़ना नहीं है, ये इसकी हरकत गिर जाएगी और इसको लिब्नु पढ़ा जाएगा। अलिफ यहाँ पे लिखा रहेगा लेकिन इसको हमने पढ़ना नहीं है, लिब्नु पढ़ेंगे, लिब्नुल मुदीरी, सही है। तो इब्न का हमजा और एक इस्म का हमजा नहीं पढ़ा जाता ना, वो लिखा हुआ होता है, लेकिन जैसे इस्मुन होता है और फिर हम माँ लगाते हैं तो मस्मू बन जाता है ना, इस्मुन होता है, और माँ लगा के जब पढ़ते हैं तो फिर आपका क्या होता है, मस्मू पढ़ते हैं, मस्मू की, ये वाला हमजा जो होता है ये हरकत भी छोड़ देता है और लिखा रहता है, पढ़ा नहीं जाता। इसी तरह इब्न में भी होता है, इब्न का हमजा लिखा रहेगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, हरकत छोड़ देगा, ये जेर गिर जाएगी, लिब्नुल मुदीर, ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, अब ये कौन पढ़ेगा, ये तो बहुत ही आसान है, इसको आके पढ़ लें। कौन आ रहा है? मैम जी आ जाइए, नाम बताइए दोबारा। आसिफा। आसिफा, माशाल्लाह, चलिए पढ़िए, तर्जुमा भी करना है आपने। जी। अल बैतु घर, घर से, इलल बैत हॉस्पिटल, इसका मतलब हॉस्पिटल, हाँ हाँ जी जी जी। फिल मुस्तशफा, हॉस्पिटल में, मिनल मुस्तशफा, हॉस्पिटल से, इलल मुस्तशफा, हॉस्पिटल की तरफ। हाँ, वेरी गुड। अब देखा आपने मुस्तशफा, देखिए मुस्तशफा के पीछे कुछ नहीं था, तब भी वो मुस्तशफा ही था,
ठीक है ना, क्योंकि उसके आखिर में जबर आ रही है। मुस्तशफा, जैसे सलमा के ऊपर आप लगाते हैं, लुबना के ऊपर लगाते हैं ना, मूसा के ऊपर लगाते हैं, तो वो यहाँ पे अरबी में नहीं लगाई जाती, अरबी में जबर लगाई जाती है। तो ये असल में इसके ऊपर अलिफ आ रहा है, इसलिए देखिए बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, मुस्तशफा मुस्तशफा मुस्तशफीरा, क्योंकि आखिर में अलिफ आ रहा है। फिल मुस्तशफा मिनल मुस्तशफा इलल कोई आपने उसको जबर को चेंज नहीं किया जेर में कि ये अब अरफ जर आ गया तो मैं जेर लगा दूं, नहीं, कुछ नहीं करना आपने। जैसे मूसा में नहीं करते ना, इसी तरह इसमें भी नहीं करते। अच्छा, अमेरिका में मतलब ये मबनी है बाजी, हाँ fixed है। मबनी समझ लें, फिलहाल मबनी समझ लें, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। अमेरिका, क्या हो गया, आपकी आवाज चली गई है, नेट चला गया। अमेरिका, फिमरिका, अमेरिका में फिमरिका, मिमरिका, अमेरिका से इलमरिका, अमेरिका की तरफ। हाँ, इसको मिलाना नहीं है, इला अलग है, अमेरिका अलग है। अच्छा, ठीक है ना, इसको मिलाना नहीं है। जब अलिफ लाम आता है ना तब मिलाया जाता है, जैसे इलल बैती, मिनल मुस्तशफा, अलिफ लाम आता है तो फिर मिलाते हैं, ऐसे नहीं मिलाते, हर एक को नहीं मिलाना होता। ठीक है, इला अमेरिका अलग अलग पढ़ेंगे, टू अमेरिका, सही है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, अल्मानिया, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं पढ़ लूं लास्ट वाला? कहाँ गई है ये आ जाती है, उनका नेट शायद वीक है थोड़ा। क्या नाम था इनका, हाँ बताया था। चलिए इसमें भी आप देख लें, लास्ट में अलिफ आ रहा है, अल्मानिया, फिलमानिया, मिनल मानिया, इलल मानिया। अभी जिनका हैंड रेज है वो आ जाए, वो पढ़ लें अपना नाम बता के। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, क्या नाम है मैं ताहिरा खलील। ओके ताहिरा खलील। जी जी पढ़िए। अल बैतो फिल बैते मिनल बैते इलल बैते। मीनिंग आता है सिस्टर? अल मुस्तशफा, जी जी, अल बैतो घर, फिल बैते घर में, मिनल बैते घर से, इलल बैते घर की तरफ। अल मुस्तशफा हॉस्पिटल, फिल मुस्तशफा अस्पताल में, मिनल मुस्तशफा अस्पताल से, इलल मुस्तशफा अस्पताल की तरफ। अमरीका, फी अमरीका अमरीका में, मिन अमरीका अमरीका से, इलल अमरीका अमरीका की तरफ। इलल तो अल्मानिया, इलल अमरीका नहीं है, इला अमरीका, इला अमरीका अमरीका की तरफ। अल्मानिया ये जर्मनी था शायद, इसका जर्मनी था। फिलमानिया जर्मनी में, मिनलमानिया जर्मनी से, इललमानिया जर्मनी की तरफ। इलामानिया, इला अल्मानिया, इला अल्मानिया, तो सही है। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर अलिफ लाम आ रहा था, यहाँ पे आप मिला सकते हैं, मिनल मानिया, अच्छा ठीक है, इलल मानिया, यहाँ मिला सकते हैं। जब अलिफ लाम नहीं आता ना तो फिर नहीं मिला सकते, सही है जी जी। अच्छा, इकरा वक्तुब, ये कौन करेगा? आप ही करने, रीड एंड राइट। हाँ रीड एंड राइट कर लें, ठीक है। इकरा वक्तुब, रीड एंड राइट। हाज़त तय्यबु मिनल कल तेरा। नो, दोबारा पढ़िए। तय्यब नहीं है, तबीब है। हाज़त तबीबु, हाज़त तबीबु मिनल कल तरा। मिनल तो नहीं है, मिन इल कल तरा। इन होता है ना, इन हाँ, इन कल तरा। ये मुश्किल लफ्ज है लेकिन आ जाएगा। इन कल तरा, इन कल तरा। अच्छा, इन कल तरा इसका मतलब इंग्लिश से है ना, इन कल तरा, इंग्लैंड से। ये
یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. ٹھیک. ذهب حامد الى فرانس فرنسا حامد الى فرنسا. ذهب حامد ذهبہ سے کیا مطلب یہ کیا میننگ ہوگا میم؟ ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے حامد فرانس سے گیا تعلق رکھتا ہے. وینٹ ہے نا, گیا. حامد کہاں گیا؟ حامد گیا کہاں؟ الا فرنسا کی طرف گیا. ہاں گیا پاسٹ ٹینس ہے نا. حامد یہ فعل ہے, ورب ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ ناؤن نہیں ہے. ذہبہ خرجا جلسا یہ ذہبہ حامد. اب ترجمہ یہاں سے شروع کریں گے. حامد گیا کدھر طرف؟ فرانس کے, یا حامد فرانس کی طرف گیا. ٹھیک ہے, حامد فرانس کی طرف گیا. محمود مریض ہوا الآن فی المستشفى. محمود مریض. محمود کیا ہے؟ سک ہے, مریض ہے. مریض ہے وہ ہسپتال کی طرف گیا. تو آنا کا میننگ کیا ہوگا؟ نہیں میں بتاتی ہوں. وہ اب الآنا کا مطلب اب ناؤ. ٹھیک ہے نا, وہ اب ہاسپٹل میں ہے. ٹھیک ہے, ہاسپٹل میں ہے. محمود مریض. محمود کیا؟ مریض بیمار ہے, وہ اب ہاسپٹل میں ہے. تو ہوا کدھر جا رہا ہے؟ محمود کی طرف جا رہا ہے. صحیح ہے نا. چلیے اب اس کی پریکٹس کیجئے گا آپ لاسٹ والے کی. ٹھیک ہے, آگے. ٹھیک. ذهب عبد الله من المانیا الى انگلترا. ذهب عبداللہ گیا من المانیا جرمنی کی طرف. جرمنی نہیں, المانیا جرمنی سے انگلینڈ کی طرف گیا. گڈ. عبداللہ گیا کہاں؟ یہ ہے نا, عبداللہ گیا. عبداللہ went from Germany to England. صحیح ہے. went ہوتا ہے ذہبہ, گیا چلا گیا. ذہبہ چلا گیا پاسٹ ٹینس ہے نا. تو ابھی اس میں انگلترا اور مانیا کے میننگ آپ کو نہیں آ رہے تھے نا, آپ نے پوچھے تھا. اب آگے جرمنی اور انگلینڈ. اور مستشفى جو ہے یہ ہاسپٹل ہے. دیکھیں اتنا بڑا ہاسپٹل بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی. اور آگے حاضل. جی حاضل کتاب لعیسیٰ, یہ کتاب عیسیٰ کی ہے. وذالک الکتاب موسیٰ, اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے. اب دیکھیں موسیٰ پہ بھی کیا آ رہا ہے؟ الف آتا ہے, عیسیٰ پہ آتا ہے. تو آپ کا چینج نہیں ہوا. عیسیٰ عیسیٰ ہی رہا, موسیٰ موسیٰ ہی رہا. زیر نہیں آئی. حرف جر کی وجہ سے زیر نہیں آئی. مستشفى پہ بھی نہیں آئی تھی, انقلترا پہ بھی نہیں آئی تھی. تو جس کے آخر میں الف آ جاتی ہے نا, یہاں فرنسا میں دیکھیں اس میں بھی نہیں آئی زیر, انقلترا میں بھی نہیں آئی. تو جب بھی الف آخر میں آئے گا تو زیر نہیں آئے گی. اچھا آگے پڑھیں. حاضل مہندس من امریکہ, یہ انجینئر امریکہ سے ہے. امریکہ سے. آپ کا بہت اچھا ہے, صرف آپ تھوڑی سی پڑھنے کی ریڈنگ پریکٹس کریں, تھوڑا سا ٹائم نکالیں, اس کو عبادت سمجھ کے کریں, کیونکہ اس کے بعد ہم نے قرآن پہ جانا ہے. مائک پہ ضرور آیا. ہاں نہیں آپ مائک پہ ضرور آیا کریں. دیکھیں آپ کی کتنی مسٹیکس نکل گئی نا, پھر آپ کو ٹیکسٹ کرنا پڑتا ہے یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا. اور ریکارڈنگ کچھ بھی نہیں ہے. ریکارڈنگ کو تو بالکل ایسے رکھیں گے کوئی کلاس میں کتاب چیز سمجھ نہیں آئی چلو میں دوبارہ سن لوں. ریکارڈنگ کو تو اس لیے رکھیں کلاس میں آئے, پارٹیسپیٹ کریں. المستشفى کیا ہے آپ کا؟ ہاسپٹل. اس کے پیچھے کچھ بھی لگا دیں گے, فی المستشفى, المستشفى, اس کا آخر چینج نہیں ہونے والا ہے. اس کی ایک ہی اینڈنگ ہے, انچینج. یہ انچینجڈ ہے. اور جو میں نے آپ کو بتائے تھے نا, اردو میں نوٹس پڑھائے تھے میں نے آپ کو, اور یہاں پر انگلش میں بھی نوٹس دیے ہوتے ہیں, یہ پوائنٹس ٹو ریمبر. تو ان کو ضرور لکھا کریں, چاہے انگلش میں لکھیں اردو میں لکھیں, ان کو نوٹ بک میں ضرور اتارا کریں. ٹھیک ہے, جب آپ لکھیں گے نا تھوڑا سا ٹائم لگا کے, زیادہ ٹائم تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. اچھا ابھی یہ والا کون پڑھے گا؟ جلدی سے اس پیسج کو پڑھ کے پھر ختم کرتے ہیں, یہ لاسٹ والا. باجی جی
लास्ट एक्सरसाइज में फोर्थ वाला एक बार देखेंगे। अच्छा विच वन? ये वाला? ज़हब अब्दुल्लाही। हाँ हाँ जी जी। हाँ, तो इसमें क्या ये पूछ? अब्दुल्लाही मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये जो कुछ नाम गया होते हैं, हाँ कुछ नाम जो होते हैं ना वो तो सिंगल होते हैं ना, मोहम्मद है ना, अली, जी ठीक है ना, लेकिन कुछ जो होते हैं मुजाफ मुजाफ इलैह की शक्ल में आते हैं, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, अब्दुल करीम, है ना। तो जितने भी अब्दुल के साथ नाम आते हैं आगे अल्लाह का नाम आता है और वो मुरक्कब इजाफी की शक्ल में आते हैं, अब्दुल रहमान, अब्दुल कुद्दूस, है ना। ओके। अच्छा, और कोई सवाल? हाँ नहीं बाजी। हाँ, अब ये जो है ना अब्दुल्ला, ये गया है, फेल के बाद इसका नाम आया जो गया है, ठीक है ना। तो अब्दुल्ला गया, कहाँ गया? मानिया से इंग्लैंड की तरफ, ठीक है। अल-आना का मतलब क्या होता है? नौ, नौ। एक दफा याद कर लें, नौ, नौ का मतलब अब वो अभी हॉस्पिटल में है। जो आपने याद कर लिया वो कितना अच्छा, फी का मीनिंग आता है, इला का आता है, मिन का आता है, वो याद कर लिया आप दफा। ज़हाबा का भी आपने ज़हाबा पहले पढ़ा हुआ है, खराजा भी पढ़ा था हमने, और मैंने कहा था ज़हाबा के बाद क्या आता है? हमेशा मिन आता है, ठीक है ना। ज़हाबा का और खराजा के बाद क्या आता है? इला आता है। नहीं, खराजा के साथ मिन आता है और ज़हाबा के साथ इला आता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो दोनों आ गए ना, क्योंकि दो कंट्रीज में जा रहे हैं, लेकिन ज़हाबा के साथ ज़हाबा इला, इलल मिरहादी, ज़हाबा अब्दुल्ला इलल मिरहादी, तो इला आता है ज़हाबा के साथ और मिन आता है खराजा के साथ। अब यहाँ पे दोनों इसलिए आए कि दो कंट्रीज में जा रहा है ना, वो यहाँ से वहां जा रहा है, तो मिन भी आ गया और इला भी आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको कौन पढ़ेगा? जल्दी से आ जाए, 8 मिनट रहते हैं। बस एक दफा रीड करना है, तर्जुमा करना है। ये वैसे भी हमने किया हुआ है पहले, ऊपर सेम पैसेज हमने किया था। मैं पढ़ लूं मैम? जी जी, पढ़ लें। नाम बता दें अपना। फौजिया रेहान। फौजिया, ठीक है, पढ़ लिए। इकरा, इकरा अस्सबूर, इकरा पढ़िए। अस्सबूरतु अमामत तालिबी, तालिबे इल्म ब्लैक बोर्ड के सामने है। वहिया खलफल नहीं आपने उल्टा पढ़ दिया। ब्लैक बोर्ड जो है वो स्टूडेंट के सामने है। ब्लैक बोर्ड तालिबे इल्म के सामने है। अमामत तालिबी है ना, अमामत तालिबी, स्टूडेंट के सामने, तो ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है ना, स्टूडेंट के सामने। ब्लैक बोर्ड स्टूडेंट के सामने है। वही या, और वो खलफल मुदर्रिसी, और वो उस्ताद के पीछे है। हाँ, अब हिया की जमीर किधर जा रही है? हिया की जमीर कहाँ जा रही है? किसकी तरफ इशारा कर रही है? स्टूडेंट की तरफ। किसकी तरफ कर रही है? स्टूडेंट बोर्ड की तरफ, बोर्ड की तरफ, क्योंकि ये मोनस है ना, तो मोनस की तरफ इशारा करेगी ना, मुजक्कर की तरफ तो नहीं करेगी ना। जमीर जो होती है ना, प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा नाउन की तरफ इशारा करता है। तो नाउन जो है मोनस की जमीर होगी तो मोनस की तरफ, मुजक्कर की होगी तो मुजक्कर की तरफ करेगा। तालिब की तरफ अगर हुआ होता तो फिर तालिब होता। चलिए आगे। आईना सय्यारतुल मुदर्रिसी, उस्ताद की गाड़ी कहाँ है? हिया अमामल मदरसाती, वो स्कूल के सामने है। स्कूल के सामने। आईना बैतुल इमामी, बैतुल इमामी, इमाम का घर कहाँ है? बैतुल इमामी खल्फल मस्जिदी, इमाम का घर मस्जिद के पीछे है। आईना जलसा हामिदुन, हामिद कहाँ बैठा है? जलसा खल्फा महमूदिन, वो महमूद के पीछे बैठा है। अब दोबारा हामिद नहीं आया, उसकी जगह वो लगा दिया है, ठीक है जी। और वो किधर है? हुआ किधर है? इसके अंदर है, इसके अंदर है, अंदर है, बैठा के अंदर ही आपका हुआ भी है। वो बैठा भी, इसमें बैठा का भी तर्जुमा आ रहा है और वो का तर्जुमा भी आ रहा है। और वो हुआ कहाँ जा रहा है? हामिद की तरफ। आगे
ज़हबा अम्मारुन इलल मस्जिदी, अम्मार मस्जिद की तरफ गया। वजलसा अमामुल मेहराबी, और वो उसमें मेहराब होगा। प्लीज म्यूट करें। और वो ताक में बैठा। नहीं वो मेरा और वो सामने बैठा। और वो मेहराब के सामने बैठा। सिस्टर म्यूट करें प्लीज, जिनके बर्तनों की आवाज आ रही। वजलसा अमामल के बर्तनों की आवाज आ रही। अच्छा, वजलसा अमामल मेराबी, और वो कहाँ है? मेराब के सामने बैठा। अमाम में और इमाम में फर्क करना है। अमाम जो है ये खल्फा का ऑपोजिट है। अमाम खल्फा पीछे, अमाम सामने। मेहराब क्या होता है आपको पता है ना? ये मस्जिद के अंदर जो मेहराब होता है, एक तो डोर होता है ना बड़ा वाला अंदर जाने के लिए, एक जहाँ पे इमाम सब नमाज पढ़ते हैं, अंदर तिलावत करते हैं, बैठ के जमात करवाते हैं, वो अंदर मेहराब होता है। ठीक है जी। और वजलसा, अब मेहराब जो है इसका रूट वर्ड हरब होता है, हरबा, और हरब का मतलब होता है जंग करना। तो फिर इसको मेहराब क्यों कहते हैं? हरब का मतलब तो जंग है, तो वहां तो कोई जंग नहीं होती ना, कि होती है? मेहराब में बैठ के, मस्जिद के मेहराब में बैठ के कोई जंग होती है? शैतान के साथ होती है, शैतान। वेरी गुड, बस यही मैं रिलेट कराना चाह रही थी। वहां बैठ के शैतान के साथ जब अल्लाह का जिक्र करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो कितना, तो इसको इसलिए मेहराब कहते हैं। मेहराब ये मीनार नहीं होते, ये तो मीनार ही होते हैं। मेहराब अंदर होता है एक, जहाँ पे इमाम साहब खड़े के खुतबा देते हैं या नमाज पढ़ते हैं, आगे जमात कराते हैं, उसको मेहराब कहते हैं। तिलावत करते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं। तो मेहराब का मतलब है वो जगह जहाँ पे बैठ के, हाँ, बैठ के शैतान से जंग की जाती है। बहुत अच्छा, तो इस तरह रिलेट करते हैं लफ्जों को। अच्छा, अब अस्सयारा तू फिशारे, सड़क पे है, गाड़ी कहाँ पर है? इसको आप जितना लंबा करना चाहे, सयारातुल मुदीरी फिशारी भी कह सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन कम से कम जो है अस्सयारातु फिशारी, सड़क पर है। और ये क्या है? मस्जिद है, ठीक है ना? हाजा मस्जिदुन, हाजल मस्जिदु जदीदुन, ठीक है ना? तो इस तरह से आप सेंटेंस को थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं। 2 वर्ड्स कम से कम, सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस में 2 वर्ड चाहिए होते हैं, लेकिन एक मार्फा होना चाहिए, एक नकरा होना चाहिए। अगर दोनों को मार्फा कर देंगे तो मुरक्कब इशारी बन जाएगा, सही है? फिर आपका नहीं बनेगा। तो जी बोलिए। आपने हरबा जंग को कहा है ना? हरब, जिहाद में, हरबा में, हाँ वो भी जिहाद ही होता है ना। अभी जो हम कर रहे हैं ये भी हम शैतान के खिलाफ ही जंग कर रहे हैं ना। तो जो भी आप नफ्स के खिलाफ जंग होती है, देखें आप अपने नफ्स के खिलाफ भी करते हैं। आपका नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन आप उठते हैं और नमाज पढ़ते हैं, है ना? अपनी नींद को कुर्बान करते हैं। तो ये सब शैतान से लड़ाई होती है ना, नफ्स के खिलाफ जिहाद। तो हर एक माना ये भी है कि जिहाद भी है वो हमारे लिए। देखिए, हाँ, जिहाद और किताल में बहुत फर्क होता है। किताल होता है दुश्मन के सामने तलवार से लड़ना, वो किताल होता है। जिहाद होता है जो भी हम कर रहे हैं। औरतों का जिहाद कुरान से जिहाद है, वो पढ़ें, सीखें, आगे सिखाएं। मर्दों का जिहाद है, वो किताल है, वो बॉर्डर पे लड़ना है दुश्मन से, अब इस्लामिक कंट्री जो है उसकी हिफाजत करना है, वो किताल है। और जिहाद और किताल में बहुत फर्क है। जिहाद का मतलब होता है कोशिश करना, ठीक है? कोशिश करना। तो कोशिश तो हर तरह की कोशिश है, कोई भी कर सकते हैं आप। किसी की कोई मदद करें, किसी बूढ़े को जो कोई गिर गया उसको उठा दें, किसी को सड़क पार करा दें, ये सब जिहाद में आता है। कुरान सीखें, सिखाएं, वॉलेंटियर करें। जो भी मशक्कत वाली चीज होती है वो जिहाद है। हाँ, जिहाद का मतलब है जद्दोजहद करना। कोशिश किसी तरह की भी हो सकती है ना, अल्लाह के रास्ते में कोशिश खास तौर पे।
اللہ کے रस्ते के लिए अपने आप को बदलना कि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए, जो मुझ में कमी है वो दूर हो जाए। नफ्स, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिहाद अकबर किसको कहते थे? नफ्स के खिलाफ जिहाद को कहते थे। अपने नफ्स के वो जंग लड़ के आए और साहबा को कहते हैं कि अभी हमने कहाँ जाना है? अभी हमने बड़े जिहाद की तरफ जाना है। तो उन्होंने कहा अभी तो जंग लड़ के आए इतनी बड़ी, तो अभी बड़े जिहाद की तरफ और कौन सा जिहाद है? तो वो कहते हैं नफ्स के खिलाफ जिहाद, ये सबसे बड़ा जिहाद है। तो अपने आप को ठीक करना, अपने नफ्स को सीधा रखना, गलत कामों से, बुराइयों से बचाना, सबसे बड़ी जो चीज हमारे अंदर वो गीबत है, हम इससे बाज नहीं आते। और किसी ने डॉक्टर फरत हाशमी से सवाल किया था कि हम कैसे बच सकते हैं, गीबत तो हो ही जाती है, जब दो बंदे मिलते हैं तीसरे की बात हो ही जाती है। तो उन्होंने कहा तीसरे की बात नहीं करो, बस अपनी बात करो, तभी बच सकते हो, वरना नहीं बच सकते। तो दो बंदे मिले तो सिर्फ अपनी बात करें, क्योंकि अगर आप तीसरे का अच्छा भी जिक्र करेंगे तो साथ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गीबत भी हो जाएगी। तो कोशिश करें हद तक इम्कान बात करें तो अच्छी करें, वरना चुप रहें, क्योंकि हर रोज हमारा सफा पलटता है किताब जिंदगी का, जो हमारा मालनामा है, और उस पर रोज लिखा जाता है। और जो कुछ लिखा जाता है, इवन हम चैट भी करते हैं ना अगर किसी के साथ, आजकल तो चैट का जमाना है ना, वो भी फरिश्ते साथ साथ लिख रहे होते हैं उस किताब में उसको, कि हम उनको क्या लिख रहे हैं, गीबत तो नहीं कर रहे किसी की। तो वो फरिश्ते अपनी उस किताब में लिख रहे होते हैं, हम बोल रहे होते हैं तो अच्छा बोले, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, होमवर्क मैं आपको भेज दूंगी। हाँ, लेकिन फिर ही मैं आपको शो कर देती हूँ यहाँ पे होमवर्क। ये वाली एक्सरसाइज करनी, जितनी भी फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइजेज है ना, वो सब करनी होती हैं, ये वाली भी और ये वाली भी करनी है, और क्वेश्चन आंसर, 3 एक्सरसाइजेस करनी है आपको। 3 एक्सरसाइजेस आपने करनी, क्वेश्चन आंसर और 2 फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज नंबर 1 और 3, ये 3 है ना, ये 3 है, और इसके बाद 4 वाली ये भी करनी है। तो ये करके अपनी ग्रुप इंचार्ज को भेज, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज। अंतुम जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अलार्म बज रहा है।